न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, ब्लेस हॉस्पिटल, BN घाटी, आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल। विधायक अग्निमित्रा पाल ने दलबल के साथ अपने प्रत्याशियों का रानीगंज में कराया नामांकन। उस दौरान एक पुलिस अधिकारी ने कथित तौर पर अग्निमित्रा को कोहनी से दिया धक्का। अग्निमित्रा ने पुलिस अधिकारी को लगाई झाड़। आसनसोल के गोपालपुर में एक बोलेरो गाड़ी ने मोटरसाइकिल को मारा धक्का, दोनों सवार घायल। बचने के चक्कर में एक ऑटो पलटा, उसका चालक भी घायल। आसनसोल रेलपार अंचल में पेयजल आपूर्ति नहीं होने पर लोगों ने किया सड़क जाम। कड़ी धूप में महिलाएं भी बैठी सड़क पर। पानी गिरता ही नहीं। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी रानीगंज सीट से हार गई थी, लेकिन इस बार पंचायत चुनाव में बीजेपी काफी जोर लगा रही है। आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में रानीगंज की कई पंचायतें भी आती है, इसलिए आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पाल मंगलवार को अपने पंचायत उम्मीदवारों को नामांकन कराने खुद एक जुलूस के शक्ल में पहुंची। जोरदार स्लोगन लगाते हुए बीजेपी प्रत्याशी, प्रस्तावक और पार्टी कार्यकर्ता अग्निमित्रा के साथ रानीगंज BDO ऑफिस पहुंचे, जहां नामांकन हो रहा है। पुलिस कर्मियों ने केवल प्रत्याशियों और उनके प्रस्तावकों को ही नामांकन केंद्र के अंदर जाने दिया। हालांकि विधायक होने के नाते अग्निमित्रा भी अंदर गई। उस दौरान उन्होंने एक पुलिस अधिकारी को जोरदार झाड़ लगा दी। अग्निमित्रा के मुताबिक वह पुलिस अधिकारी उनको कोहनी से धक्का दे रहा था। ঠিক আছে, বি ইন ইওর লিমিট। ওকে ম্যাডাম, ঠিক আছে ম্যাডাম, লিমিটে রাখতে বলুন। ঠিক আছে, লিমিটে রাখতে বলুন। ঠিক আছে, কোনোই দিয়ে খেলছেন। बाद में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी विधायक अग्निमित्रा ने कहा कि रानीगंज थाना प्रभारी के सामने यह घटना हुई। पुलिस अधिकारी उन्हें कोहनी से धक्के दे रहा था। ममता बनर्जी की पुलिस ही ऐसा काम कर सकती है। কোনো কনস্টেবল নয়, উনি পুলিশ অফিসার এবং থানার যে বড়বাবু তিনি পাশে ছিলেন। ওনার সাহস হয় কি করে একজন মহিলাকে, MLA তো ছেড়ে দিন, আমি এই ভারতবর্ষের এবং পশ্চিমবঙ্গের একজন নাগরিক, আমাকে খুনি করে মারছেন। আমি এমন মার দিতে পারি, কিন্তু দেব না, কারণ আমরা ওই শিক্ষা পাইনি। আপনি তো এটাই এক্সপেক্ট করেন যে রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীর মন্ত্রী আমাদের মহামহিম রাষ্ট্রপতিকে তার রূপ নিয়ে অপমান করেন, তার কোনো শাস্তি হয় না শাস্তি। যে হাঁসখালির মেয়েটিকে TNCর নেতার ছেলে গ্যাংরেপ করে, মুখ্যমন্ত্রী কি বলেন? ও তো প্রেম ছিল, পেটে বাচ্চা ছিল। TNCর নেতা আমাদের বিজেপির নেত্রীকে নিয়ে বলেন পায়ে নুপুর করে রাখবো, শাস্তি হয়? আমাদের পশ্চিমবঙ্গে মহিলাদের যত অপমান করবে, যত লুজ কথা বলবে, লাঞ্ছনা করবে, তত তাড়াতাড়ি পদোন্নতি হবে। এই পুলিশ অফিসারও হয়তো তাই ভেবেছিল, আমাকে কুনুই দিয়ে মেরে আমাকে লাঞ্ছিত করবে। ওনার তো আমাকে কুনুই দিয়ে মারার কোনো কেউ ছিল না, আপনারা তো দাঁড়িয়েছিলেন। আমি যাচ্ছি DCR কাটার রুমে, সেখানে আমাকে কুনিয়ে দিয়ে ঢুকতে দেবে না। সে দেখাচ্ছে কতটা সে মানে সরকারের প্রতি তার লয়্যালটি সে দেখাচ্ছে। তাকে দিয়েছি আমি আচ্ছা করে। আই হোপ মানে আগামী দিনে কোনো মহিলার ওপর চোখ রেখে কথা বলতে সাহস পাবে না। পুলিশ তো মিথ্যে কথা বলতে তো পারদর্শী। পুলিশ মন্ত্রীকে মুখ্যমন্ত্রী সকাল থেকে উঠে রাত অবধি উনি মিথ্যে কথা বলেন, তার কর্মীরা, তার পুলিশরা মিথ্যে কথা বলবে, এটাই তো স্বাভাবিক। যদি বুকের পাটা থাকে তো রানীগঞ্জের বড়বাবু পাশে ছিলেন, তাকে বলুন তো। তার মিথ্যে কথা উনি আপনাদের বলতে পারেন, আমার সামনে বলতে পারেন, পাবলিককে বলতে পারেন, বাড়িতে গিয়ে সন্তানের সামনে তো দাঁড়াতে হবে, নিজের সামনে আয়নাতে তো দাঁড়াতে হবে, তখন কি মিথ্যা কথাটা বলতে পারবেন? अग्निमित्रा द्वारा पुलिस अधिकारी को कोहनी से धकेलने की घटना के संबंध में नामांकन केंद्र में मौजूद एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई, मुझे कोई शिकायत नहीं मिली है। না, এটা ঠিক না।
না না, এরকম অভিযোগ আমার কাছে নেই। না না, এরকম কোনো অভিযোগ আমার কাছে আসেনি কোনো। এরকম না, এরকম অভিযোগ আমাদের কাছে নেই কোনো। আপনাদের পক্ষ থেকে কি মানে পুলিশকে উনি কোনো অসহযোগিতা করেছেন এরকম কোনো বিষয়? না, আমাদের ঠিকঠাকই ওনারা যেরকম বলেছে সেরকমই ঢুকেছেন না। আচ্ছা, ওনারা যে মিছিল করে এলেন 144 এত লোকজন নিয়ে, না, মিছিল করে না, ওরা সব একসাথেই এসেছে, কিন্তু এখানে এক এক করে আমরা ঢুকিয়ে দিয়েছি। বাইরে থেকে ওরা এসেছে। তো 144 ধারা জারি, তাহলে কি করে এত জমায়েত হলো? ওরা জমায়েত না, আলাদাভাবে এসেছে। যখন এসেছে আলাদা করে, তারপরে গেটের সামনেটাতে ভিড় হয়ে গেছে। গেটের কাছে না, আমরা ঠিকঠাকভাবে ওনাদের ঢুকিয়েছি। যখন গেটের মুখে, তখন লোক একসাথে জড়ো হয়ে গেছে। एक दिन पहले सलानपुर में तृणमूल कांग्रेस द्वारा पंचायत चुनाव के लिए नामांकन करने आए विरोधी पार्टियों के प्रत्याशियों का गुलाब फूल और चाय पानी से स्वागत किया गया था। अब दूसरा दिन तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशियों ने स्वयं नामांकन किया। सलानपुर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के संयुक्त अध्यक्ष भोला सिंह के नेतृत्व में तृणमूल के उम्मीदवारों ने सलानपुर बीडीओ कार्यालय में जाकर नामांकन किया। भोला सिंह ने कहा कि यहाँ शांति से नामांकन हो रहा है। একদিনই নমিনেশন করবো, আমাদের তো সব রেডি ছিল। আমরা নমিনেশন করার জন্য আমাদেরকে বিধায়ক, বিধান উপাধ্যায়, মুকুল উপাধ্যায় যেরকম নির্দেশ ছিল, আজকে নমিনেশন করবো, আমরা সবটাই নমিনেশন করবো। কিছুটা বাঁচলে কালকে করবো, শান্তিপূর্ণভাবেই, একদম শান্তিপূর্ণ। সব জায়গায় শান্তিপূর্ণ হচ্ছে, এখানেও শান্তিপূর্ণ। पर्व त्योहार हो या शादी विवाह, हर मौके के परिधान के लिए पधारे मोहन द फैमिली स्टोर। पारंपरिक ड्रेस के साथ लेटेस्ट ट्रेंड के कपड़ों का विशाल भंडार। यहाँ मिलेंगे कपड़ों के साथ कॉस्मेटिक और बैग्स भी। किफायती दर लेकिन उम्दा क्वालिटी, इसलिए हर उम्र और हर वर्ग के लोगों के लिए पसंद बना मोहन द फैमिली स्टोर, जो है शिल्पांचल का एक ट्रस्टेड ब्रांड। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार। साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। राधा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल, तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट TV और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल। आसनसोल के गोपालपुर में एक तेज रफ्तार बोलेरो गाड़ी ने एक मोटरसाइकिल को धक्का मार दिया, जिससे उस पर सवार 2 लोग घायल हो गया। वहीं इस दुर्घटना से बचने के चक्कर में एक ऑटो भी पलट गया, जिससे उसका चालक भी घायल हो गया। 3 घायलों को आसनसोल जिला अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जाती है। जिस बोलेरो गाड़ी से यह दुर्घटना हुई, उसका चालक वहीं निर्माणाधीन पुल के पास गाड़ी खड़ी कर उसे बाहर से लॉक कर मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने घटना की खबर पुलिस को दी, तो मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाने की व्यवस्था की। जहां दुर्घटना हुई थी, सड़क पर ढेर सारा रक्त गिरा था, जिसे पुलिस कर्मियों ने पानी से बहाकर साफ किया। मोटरसाइकिल पर सवार लोग धेमोमेन के रहने वाले बताए जाते हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक बोलेरो आसनसोल से बराकर की तरफ जा रहा था। उसी दौरान उसने मोटरसाइकिल को धक्का मार दिया। ऑटो चालक ने खुद को बचाने के लिए किनारे गया तो वह भी पलट गया। एक बुलेट गाड़ी आ रहा था, हाँ, आके दोनों बाइक वाला को मार। किधर से आ रहा था? बराकर साइड से। और टेम्पो वाला किधर से आ रहा था?
टेम्पो वाला भी इधर से आ रहा था, अब मोटरसाइकिल वाला? हमारे से बराबर से आ रहा था और मेन नंबर से आ रहा था। हाँ, तो फिर क्या हुआ मामला? वो एक्सीडेंट किया है, एक्सीडेंट करके भाग गया वो। कौन भाग गया? बोलेरो वाला। बोलेरो वाला भाग गया। हाँ, फिर ऑटो वाला उसको बचाने गया तो फिर साइड में घुसा दिया उसको। ज़्यादा चोट किसको लगा है? बाइक वाला को। कितने लोग थे बाइक में? 2 आदमी थे। दोनों को भी कहाँ पे ले गए हैं? अभी हॉस्पिटल ले गए उसको। गंभीर रूप से घायल है क्या? हाँ। घायल ज़्यादा है क्या? हाँ, एक तो का बहुत सीरियस है। कुछ पता चला कि वो लोग कहाँ के थे? हाँ, क्या मेन नाम नंबर का था? था। जामुरिया के कृष्णनगर में पिछले दिनों आंधी तूफान से कई सारे पेड़ गिर गए थे। बिजली के खंभे गिर गए थे, लेकिन उन्हें हटाया नहीं गया। केवल रास्ते पर गिरे पड़े को हटाया, लेकिन कई लोगों के घरों पर पेड़ गिरे थे। उन्हें हटाने की मांग पर स्थानीय लोगों ने मुख्य जामुरिया सड़क को मंगलवार के दिन जाम कर दिया। करीब आधे घंटे तक जाम किया गया, जिससे दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। खबर पाकर पुलिस पहुंची और जाम हटाया। पुलिस अधिकारियों ने गिरे हुए पेड़ और बिजली के खंभे को हटाने का आश्वासन दिया। हम लोग कल गाछ गिरा था, पुलिस आया, सिर्फ अपना रोड क्लियर करवाया और वो चला गया। और जो घर पर गाछ गिरा हुआ है वो सब कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है। ना वीडियो ऑफिस बोल रहा है कि आ रहे हैं, अभी तक वो लोग कोई नहीं आया। वीडियो ऑफिस बोला था तो आएंगे, बार अभी तक आ ही रहा है वो लोग। तो हम लोग इसलिए रोड जम के ना लाइन का लाइन व्यवस्था भी नहीं है, ना स्टेट लाइन में कोई आ रहा है, ना स्टेट लाइन में कोई आ रहा है। या कोई व्यवस्था किसी का भी कुछ हो रहा है। सिर्फ अपना रोड पुलिस क्लियर कर लिया, उसके बाद अपना गाड़ी चल रहा है लोग का, बस यही हुआ। सुधा हेल्थ केयर, जहां मिलती है एक ही छत के नीचे चिकित्सा जांच की सभी प्रमुख सुविधाएं। यहां आप पाएंगे इकोकार्डियोग्राफी, यूएसजी, एंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी की उन्नत मशीन से जांच, ईएनटी टेस्ट और डायबिटीज स्पेशलिस्ट क्लिनिक हमारे डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिक लेबोरेटरी में उपलब्ध है। फुली ऑटोमेटेड मशीन। यहां मिलता है विशेषज्ञ चिकित्सकों के परामर्श के साथ ही फार्मेसी में 15% तक की छूट। तो जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, बीएनआर मोड़ और एसपी ग्राई रोड नियर एक्सिस बैंक, आसनसोल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल। आसनसोल के केएसटीपी के निकट ज्योति नगर में बनकर तैयार है एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा, साथ ही अन्य जरूरी चिकित्सा सेवा। आसनसोल के प्रमुख सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार और गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शशि कला द्वारा संचालित ब्लेस हॉस्पिटल, जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर। हमारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल।
पिछले कई दिनों से जारी भीषण जानलेवा गर्मी से हर कोई हलकान है और ऐसे में अगर पेयजल की सप्लाई नहीं हो तो लोगों के लिए जीना ही मुश्किल हो जाएगा। आसनसोल के रेलपार अंचल के वार्ड नंबर 28 के जहांगीरी मोहल्ला में पिछले कई दिनों से पेयजल की नियमित आपूर्ति नहीं हो रही है। इस इलाके के लोग परेशान हैं। बाध्य होकर मंगलवार के दिन उन्होंने सड़क जाम कर दिया। महिलाएं भी सड़कों पर आ गई। कई घंटों के बाद आखिर पुलिस पहुंची और समझा बुझाकर सड़क जाम हटाया। हम लोग का बहुत दिक्कत है, हम लोग को पानी नहीं मिल रहा है। 4 साल से हम लोग पानी बिना तड़प रहे हैं। इतना पानी का तकलीफ है जो बता नहीं सकते। हम लोग एक बाल्टी भी पानी नल से पानी गिरता ही नहीं, इधर उधर से हम लोग पानी करते हैं, समझे। कितना महीना से? 4 साल से पानी नहीं रहा, हल्का फुल्का पानी। हाँ, 4 साल से पानी नहीं आ रहा है। काउंसलर से बोले थे? सबसे बोले, काउंसलर से बोलते हैं कल आएगा, परसों आएगा, 1 हफ्ता बाद आएगा। तो नल बैठ रहा तो ये बैठ रहा, कुछ नहीं होता, नया पाइप बैठ रहा। हम लोग का माँ बहन जो यहाँ पे आकर के ज़ईफ़ पे बच्चा लोग हैं, यहाँ पे जो है हम लोग पानी का, हम लोग तो पर्दा हसीन है, नसी हैं, हमारी माँ बेटी लोग बाहर नहीं निकलती है, लेकिन इतना हम लोग के साथ ज्यादती हो रहा है कि पानी का लेकर के हम लोग यहाँ पे निकले हैं। और अगर जा कर के पानी नहीं आया तो हम लोग बड़ा रोड जाम करेंगे। अगर इस हादसे में किसी को कुछ नुकसान हुआ तो उसका जवाब मेयर से लेंगे हम लोग। स्कोप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के लिए सेल स्कोप प्लांट में काम करने वाले 70 श्रमिकों को कंपनी ने सिर्फ इसलिए काम से हटा दिया क्योंकि उन्होंने पीएफ और ईएसआई सुविधाएं देने की मांग की थी। इन श्रमिकों ने मंगलवार को कन्यापुर स्थित राज्य सरकार के श्रम दफ्तर पहुंचे और अधिकारियों से मिलकर न्याय की फरियाद लगाई। इन श्रमिकों का कहना है कि करीब 5 महीने से उनका पीएफ और ईएसआई काटा जा रहा है, लेकिन उनका भुगतान नहीं किया जा रहा है। सोमवार को इसकी मांग पर आंदोलन किया तो हमें काम से हटा दिया गया। इसको हम लोग स्कोप मैनेजमेंट में काम करते हैं। वहाँ पे हम लोग 6 महीना हो गया, अभी तक ना ईएसआई पीएफ अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, ना सेफ्टी सूल है, कुछ नहीं है। जब भी हम लोग सेफ्टी सूल मांगते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, वो लोग आता है, कुछ फ़ोन भी नहीं, मैनेजमेंट फ़ोन भी नहीं उठाता है, कोई भी लड़का को फ़ोन कुछ नहीं उठाता है। कल हम लोग सेफ्टी सूल के लिए और पीएफ ईएसआई के लिए आंदोलन किए हैं, तो हम लोग फिर घर आ गए। फिर हम लोग को सब लड़का को बोला कि हम लोग रिका दे दिया ना, टर्मिनेट कर दिया। सब लड़का लोग को दे दिया, कुछ बोला नहीं गया, हमसे कुछ नहीं बताया गया। अच्छा, 2 महीना के बाद हमारा टेंडर सब खत्म हो जाएगा। ईएसआई पीएफ कुछ क्लियर नहीं हुआ अभी तक। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, ब्लेस हॉस्पिटल, बीएन घाटी, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल।